thank God this time prayer and fellowship with especially Pastor Shibu and his family and all the church. आज का पवित्र दिन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। प्रभु का दास और उनके सभी के लिए मैं आज धन्यवाद करता हूं। My acquaintance with the Pastor Shibu is a time experience. We had many times fasting prayer in different places of साउंड is a long time experience. We had many times fasting prayer together, and we came to know the ministry in Renukota. So God is developing that ministry, and we are praying for, especially, I know that so many pastors are attending in this program, and tonight let God speak to us, encourage us in this pandemic situation. हालेलुया। मेरा परमेश्वर के चरणों में जो कार्य है, हालेलुया, प्रभु की दासों को हालेलुया हालेलुया प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ाए। आज मैं जानता हूं इसमें बहुत सारे पास्टर लोग हैं जो आज से इस वचन को सुनने के लिए इसमें जुड़े हैं। आज हालेलुया और रेड कोट कलीसिया का और भी लोग हैं, मैं सबके लिए धन्यवाद करता हूं। आज मैं उनको सबको प्रभु की वचनों में आगे बढ़ाने के लिए जो कोशिश है मैं वो करना चाहता हूं। God spoke to me to say something basically to pastors. I am not avoiding basically to pastors, because pastors are facing so much difficulties in these days. You know that in India, more than 2,000 pastors died because of this pandemic situation. Pastor, sound അങ്ങ് പറയുന്നുണ്ടെ അങ്ങ് ഗുമ്മനായി പോവുക. അങ്ങോട്ട് ഇച്ചിരൊന്നും പുറമോട്ടൊന്നിരിക്കുക, ഇച്ചിരൊന്ന് പാസ്റ്റർ ആ സ്ക്രീനിന് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ശകലം അത് കൊള്ളാം. ഇനിയൊന്ന് പറഞ്ഞേ. This night I was praying, God spoke to me to say something to pastors more than believers. हालेलुया। आजकल दिन में प्रभु की चरणों में जब मैं बैठे थे, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया है विश्वासियों को हालेलुया ज्यादा वजन बोलने से भी बढ़कर पास्टर लोगों को थोड़ा जोश दिलाए और उनको प्रभु की वजनों में हालेलुया और हालेलुया बल दे, धीरज कराने के लिए प्रभु ने मुझे प्रेरणा दिया है। Many pastors are discouraged due to this pandemic situation. बहुत तेरे पासवान लोग हैं, हालेलुया, मन के अंदर उदास हुआ, दुर्बल हुआ, ये जो बहुत बड़ा महामारी के बीच में। And in India, more than 2,000 pastors died due to coronavirus. हालेलुया। हमारी भारत के अंदर 2,000 से ज्यादा पास्टर लोग हालेलुया पिछला ये कुछ दिन में कोरोना वायरस के द्वारा हमारी धरती को छोड़ दिया। So the churches are some extent shattered. Churches are closed. No worship. No financial support. Village ministries are troubled a lot these days. हालेलुया। हम जानते हैं अभी कलीसिया नहीं चल रहा है और प्रभु का दास लोगों को आर्थिक रीति से कमजोर है और उनको जीवन में हालेलुया मन के अंदर उदास है, कमजोर है, क्योंकि उनकी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो धन का जो जरूरत है वो पूरा नहीं पड़ रहा है, ये हम सब जानते हैं। When pastors became discouraged, what about the believers? They too get much discouraged. The leader is discouraged. हालेलुया। जब पासवान लोग मन के अंदर जब उदास हो जाता है, उसका 2 गुना विश्वासी लोगों के अंदर हालेलुया उदास आना शुरू हो जाता है। Is there any remedy, any answer from God's word in this situation? परमेश्वर ने इसके बदले में जो उत्तर मुझे जब प्रभु ने चरणों में जब बैठा था जो दिया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। I am the answer in God's word. In God we have every answer. Whatever may be the difficulties, deafness, calamities, in God we have answer. हालेलुया। यह धरती पर चाहे प्राकृतिक हो, मानुषिक हो या महामारी के द्वारा हो, कुछ भी हो जाने के टाइम हालेलुया हम लोगों को यह जानकारी होना जरूरी है, हमारी जीवन में जो कुछ भी हालेलुया संभव उठते हैं उसका सबका जवाब और वो हमारा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के
पास है। So keeping that in mind, please turn your Bible, Old Testament, പഴയ നിയമത്തിൽ book of Numbers, സംഖ്യാപുസ്തകം, book of Numbers, chapter 11. Please turn with me. गिनती का किताब 11 अध्याय के हम पूरा करके निकालेंगे। So in book of Numbers 11 chapter, when you get the time, you please read it. It says 23 word. God spoke to Moses. Did God's hand be shortened? ദൈവം മോശയോട് പറയുന്നു, എന്റെ കൈ കുറുകി പോയിട്ടുണ്ടോ? गिनती का किताब 11 अध्याय उसका 23 वचन में परमेश्वर हालेलुया मूसा से कहता है, हालेलुया यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया क्या? The Bible says God's activities regarding God's hand is a mighty hand. It works miracles. You know, hand of God is a very large, elaborate, amplified subject in the Bible. हालेलुया परमेश्वर की हाथ हालेलुया जरूर हमारी जीवन की जो भी अवस्था है उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से, बहुत हालेलुया सिद्ध तरीके से मानव के लिए प्रकट हुआ है। ये हम परमेश्वर की पवित्र वचन से हम ध्यान कर सकता है। അവൻ തന്റെ കൈകൊണ്ട് സകലത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് വഹിക്കുന്നു എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു। हालेलुया प्रभु की पवित्र वचन हमको कहता है, प्रभु अपनी हाथ से चीजों को बनाया और उनको हालेलुया रखवाला करता है। നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ we do more activities with our hands. Without a hand, what kind of life we can do with? हालेलुया जो भी कार्य जब हम करते हैं हम अपनी हाथ से कार्य करता है। That means if we don't have hands, our activities are stopped or we cannot continue. Anyway, when God has shortened means God is inactive. That's what God is asking. Am I an inactive God? जब हमारी हाथ नहीं होते हैं, जब हमको कार्यों को लगातार करने में परेशानी होता है, इसलिए प्रभु ने मूसा से पूछ रहा है, मेरा हाथ क्या कम हो गया क्या, कोई रुक गया क्या? मतलब मेरी काम जो करना है धरती के ऊपर क्या रुक गया क्या, ऐसा पूछ रहा है। Inactive means God is a kind of dead God. He doesn't have life because he can't work. But നമ്മുടെ ദൈവം മരിച്ചുപോയോ, ദൈവം എവിടെയാണ്, where you are God, you are not seeing. Especially young people are asking, all these things are happening, people are dying like mosquitoes, where is God, where is God? That's a question happening now. जब धरती पर मानव के विरुद्ध में अलग अलग बातें जब हो जाता है, मनुष्य चिल्लाना, मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध बात बनाना शुरू हो जाता है, लोगों से पूछने लगता है तुम्हारा ईश्वर कहाँ है? क्योंकि लोग चाहते हैं एक मच्छर भी अगर व्यक्ति को काटेगा तो लोग तो ये सोचता है परमेश्वर उससे मुझे बचाए। In the Psalms there is a word, my enemies are asking, where is your God? നിന്റെ ദൈവം എവിടെ എന്ന് എന്റെ ശത്രുക്കൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു। हालेलुया प्रभु की पवित्र भजन संगीता में हम एक जगह पर पढ़ते हैं, हालेलुया प्रभु से लोग शत्रु लोग अपने लोगों से पूछ रहा है तुम्हारे ईश्वर कहाँ है? But ഇവിടെ think about Moses was taking these people out of Egypt, more than 20 lakhs people. They are now coming very near to the promised land, Canaan. കനാനിലേക്ക് അടുക്കുന്ന സമയത്ത് അനേക 40-ൽ പരം വർഷങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് ആ പ്രോമിസ് എടുക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ആണ് ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നത്। हालेलुया हम जानते हैं प्रभु का दास मूसा लोगों को मिस्री की गुलामी से, लाखों लोगों को मिस्री की गुलामी से छुड़ाकर प्रभु ने बोला हुआ वायदा का जगह कनान देश के नजदीक जब आता है, वायदा का जगह को जब प्राप्त करने के लिए एकदम नजदीक आ जाता है, उस समय उनके जीवन के विरुद्ध में बहुत बड़े बड़े बातें घटना शुरू हो जाता है। ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ കരഗതമാക്കുന്ന ഇനി കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ, വെരി നിയർ, വെരി ടു ദ പ്രോമിസ്। हालेलुया परमेश्वर की वायदा का जगह कनान देश में प्रवेश करने के लिए बिल्कुल थोड़े समय रह गया। उसी थोड़े समय के टाइम पर शैतान ने इनको उलट पुलट कर प्रभु की विश्वास से, परमेश्वर की छाया से दूर करने का कोशिश कराता है।
അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ജനം, what is the mentality of these people? What kind of talk? Murmuring. It says in the beginning part, each one sitting in front of their houses and they were crying, murmuring against Moses, disappointment, discourage, negativity, all kinds of negativity is happening there. हालेलुया। हम देख सकता है ये जो पुस्तक का शुरुआत में जब मस्ती गाने लग गया, दुनिया जो गलत बातों से द्वारा, हालेलुया, मन को पीछे करने के द्वारा, मनुष्यों को गुस्सा दिलाने के द्वारा, उस तरीके का क्रोध होने के तरीके का बातों को लेकर मूसा की मन को छोटा कर हालेलुया इनका विरुद्ध कराने का कोशिश कराता है। ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ദൈവം പറഞ്ഞതെല്ലാം നടപ്പിൽ വരാൻ പോകുന്ന ആ സമയത്ത്, അല്ലെ, ഭാരതത്തിലെ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങള്, സഭകള്, ദൈവവേല വളരെ ശക്തമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് 2000 പാസ്റ്റേഴ്സ് മരിക്കുന്നു, hundreds and thousands of believers മരിക്കുന്നു, പൈസ ഇല്ലാതെ ആകുന്നു, everything stopped, stagnated. ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? സ്തോത്രം, हालेलुया। उसी जैसा आज हमारी भारत की बात भी यही है। 2000 से ज्यादा प्रभु का दास लोगों को मृत्यु हो रहा है, हजारों गुण विश्वासी लोगों को, हालेलुया, मृत्यु हो रहा है। हमारी भारत के अंदर एक बहुत बड़ा बेदारी, प्रभु की वायदा जो भारत के ऊपर होने के लिए जा रहा है, तब हालेलुया मनुष्यों को इस तरीके की बातों को सुनकर मन के अंदर डर भय आकर आगे क्या करना है कर परमेश्वर के पास आकर अपने हाथों को फैला रहा है। This time of situation brings two attitude of people. इस समय मनुष्यों को दो स्वभावों को प्रकट कराता है। Normal people, so many normal people, they will stray from faith and they will run away from faith. बहुत तेरे लोग हैं, हालेलुया, प्रभु की विश्वास से हटकर, हालेलुया, दूर जाकर अपनी मनमर्जी का चलना शुरू हो जाता है। People who always think that God will bless me with money and such things, they will run away because they are not seeing any blessing in present situation. हालेलुया। जो लोगों के पास धन दौलत और पैसा ज्यादा होते हैं, वो लोग क्या करता है, तो ये जो सेवकाई और ये जो परमेश्वर की विश्वास, ये सब छोड़कर भाग जाता है, क्योंकि उनको पता चल गया अभी कलीसिया नहीं है, अभी प्रार्थना नहीं है, कोई आशीष मिलने वाला नहीं है, भाग जाओ। But people who strong in the faith, people who tasted and saw the faithfulness of God, they will not run away, they will be strong in their faith. जो लोग प्रभु का विश्वास में बहुत अच्छे नींव बनाया हुआ लोग है, चाहे कितने भी बड़ा महामारी, कितने भी बड़ा विश्वास के और धक्का आ जाने, वो लोग कभी ना डगमगाएगा, ना कभी पीछे हटेगा, प्रभु में बहुत अच्छे से धीरे से बना रहता है। ग्रुप यू बिलोंग्स, നിങ്ങൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഇന്ന് രാത്രി ആയിരിക്കുന്നത്? आज रात को परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, इसमें से कौन सी जुड़ में हैं आप? You all understand, maybe time being some difficulties you may face, but great promise is waiting for you. आपके जीवन में जरूर दुर्घटनाएं हैं, परेशानियां हैं, लेकिन आप एक बात याद करना, आप वायदा का जगह का एकदम नजदीक पहुंचा हुआ है। അബ്രഹാമിനോടും ഇസ്ഹാക്കിനോടും പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരോടും ഒക്കെ വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത പ്രോമിസ് ലാൻഡിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഇനിയും ക്രൈസ്റ്റ് കമ്മിങ്, നിങ്ങളുടെ പ്രോമിസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിടക്കുകയാണ്. അതാണോ കാണുന്നത്, അതോ ഈ സ്മോൾ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ആണോ നമ്മൾ കാണുന്നത്? हालेलुया। अब्राहम, इसहाक और याकूब को बताया हुआ, हालेलुया, वायदा का देश के नजदीक हमारा, हालेलुया, जी उठना, हमारा रूबान रोना एकदम नजदीक आया है, उसको हम देख रहा है, या हालेलुया धरती का छोटी छोटी बातों के अंदर हम घूम रहा है। Here in this context, Moses got angry and he was telling, when you read chapter 11, Lord, please take my soul. കർത്താവേ, എന്നെ എടുക്കണമേ, ഞാൻ മരിക്കട്ടെ, എനിക്ക് ലീഡർഷിപ്പ് വേണ്ട, എനിക്ക് മിനിസ്റ്റർ വേണ്ട, everything finish, I don't want to continue this ministry, kill me, oh Lord. See, he is praying, he is asking God, kill me, destroy me, let me die. That is Moses' prarthana.
जब दुनिया का लोग एकदम नजदीक के टाइम पर उनको तंग करने लगा तो हालेलुया मूसा प्रभु से बता रहा है, पिताजी मैं जीना नहीं चाहता हूं, मुझे उठाओ, मैं इनको अगुवाई नहीं करना चाहता हूं, मैं इनका आगे लीडर बनना नहीं चाहता हूं, मुझे आप उठा लो करके प्रभु के सामने चिल्लाता है मूसा। The understanding that God is telling, please bring 70 people and I want to take some amount, some part of the Holy Spirit in you to impart 70 people. तब इस तरीके के मुश्किल परिस्थिति में जब आया, परमेश्वर ने उनको बोला गया तुम 70 लोगों को चुनो और तुम्हारे अंदर से जो पवित्र आत्मा है, जो शक्ति है, उनके जीवन में बांटो और वो लोग भी तुम्हारे पीछे अगुवाई करेगा। God, Moses brought 70 people, these 70 people later they showed us Sanhedrin, and God imparted little anointing from the life of Moses to these people. Then they started to do prophetic ministry. हालेलुया, हम देखे हैं मूसा 70 लोगों को लेके आते हैं, उसके बाद हालेलुया उनके ऊपर हालेलुया पवित्र आत्मा मूसा के अंदर से उठाया हुआ पवित्र आत्मा आने के बाद वो लोग प्रभु की सेवकाई को वहां वो लोगों को अगुवाई करते हुए हम देख सकता है। What is the meaning? What I am saying tonight, you have a tremendous anointing in your life, ability in your life, keeping that in your heart. If you are prevailed with the discourage, you cannot continue in ministry. हालेलुया, मैं आज ये रात को ये बताने के पीछे के कारण क्या है, हालेलुया आपके अंदर प्रभु ने वो अभिषेक दिया हुआ है जो ये जो महामारी के टाइम पर हालेलुया जो आपको करने के लिए प्रभु ने आपको चुना हुआ है। अगर आप इस समय अगर सही रीति से प्रभु की सेवकाई नहीं करेगा तो प्रभु हालेलुया आपके अंदर से जो दिया हुआ जो शक्ति को दूसरे के अंदर डालकर प्रभु अपने कार्यों को कराएंगे। കർത്താവിന്റെ വലിയ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം നമ്മുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തരണം ചെയ്ത് മിനിസ്ട്രിയിൽ ശോഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഒരു അന്യഭാഷ പറയാനോ കൈമുട്ടാനോ മാത്രമല്ല. The anointing in you should help you to overcome all these challenges. തടസ്സങ്ങളെ നിങ്ങൾ അതിജീവിക്കണം. സ്തോത്രം. हालेलुया, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया हुआ इसलिए है कि हम लोग ये जो परेशानी है, रुकावटें हैं, हालेलुया जीवन की कठिनाइयां हैं, इसके सामने हालेलुया उसको सामना करने के लिए, उसके ऊपर जय का हौसला सुनाने के लिए केवल हाथ उड़ाना, थोड़ा सा अन्य भाषा बोलना, थोड़ा सा प्रार्थना करना, केवल इसके लिए अकेला नहीं है। ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്, വ്യക്തിത്വമാണ്, ദൈവമാണ്, സർവശക്തിയാണ്, സർവാധികാരിയാണ്, ഒമ്നിപോറ്റന്റ് ആണ്, ഒമ്നീഷ്യന്റ് ആണ്, ഒമ്നിപ്രസന്റ് ആണ്. Especially the difference of Pentecostal ministry, we are emphasizing the anointing and the usage of spiritual gifts that will empower us in every type of situation. हालेलुया, हमारे जीवन का हर एक परिस्थिति में परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो व्यक्तित्व है वो हालेलुया आप विश्वास कीजिएगा वो परम प्रधान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी है, वो हालेलुया सर्वशक्तिमान है। हर जगह एकदम आपकी जीवन की हर एक कठिनाइयों को सामना करने के लिए आपको शक्ति देने वाला चीज है। इसलिए आप पवित्र आत्मा का शक्ति को पाइए और आगे बढ़िए। In the New Testament we read the very beginning of the church, what God did, God imparted his anointing upon the disciples. Why? Means everyone should be a martyr. Jesus knew that Thomas is going to be a martyr, Bartholomew is going to be a martyr, Peter is going to be a martyr, John is going to thrown into the boiled oil, thrown into Patmos. Jesus knew, the prophetical spirit in Jesus knew what these disciples are going to face within 30 years, 40 years. Therefore, to persist, to face such a great calamity, the empowerment came upon them.
हालेलुया। हम देख सकते हैं परमेश्वर की पवित्र वचन के अंदर प्रेरितों को, हालेलुया, प्रेरितों का काम 2 अध्याय के अंदर परमेश्वर की श्रेष्ठ चेला लोगों को पवित्र आत्मा से भरपूर करने के पीछे क्यों ऐसा भरपूर किया? क्योंकि आगे जो कठिनाइयां, आगे जो परेशानियां, आगे जो मुश्किलें जो आ रहे, हम देखे हैं पत्रोस, हालेलुया, शहीद हुआ, अंद्रयोस शहीद हुआ, फिलिपोस शहीद हुआ, हालेलुया, यूहन्ना, हालेलुया, गरम तेल के अंदर डाल दिया गया और पत्मोस का द्वीप में उनको फेंक दिया गया। वहां हर जगह वो लोग, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा में बने रहा और उन्नति पाया, शक्ति पाया, प्रभु की आशीष पाया और आगे बढ़ा। आज उस पवित्र वचन उनके द्वारा पूरी दुनिया में फैल गया, क्योंकि उन्होंने परेशानियों को सामना करने का शक्ति को पाया। I'll give one example. मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। This end of 19th century and we are running to 20th century. हालेलुया, हम 19वां सन के बाद हम 20वां सन को जा रहा है। The same situation the world faced, around 1912 to 1919 years, 7 years, the same kind of virus problem with especially Europe faced. हालेलुया, हम 19वां शताब्दी में, हालेलुया, अभी हम 20वां 21वां शताब्दी में प्रवेश कर रहे हैं। आज का जो वायरस का सही वही परेशानी 1912 में यूरोप देश में फैल गए थे। 7 years it was known as Spanish flu. उसको हम लोग स्पेनिश फ्लूइड कहते थे। For 7 years that killed more than 20 lakhs of people. हालेलुया, वो 7 साल में 20 लाख लोगों को मार दिया गया। Then you think about it, suddenly World War First happened. आपको ये ध्यान करना जरूरी है, सबसे पहले कहां ये शुरुआत हुआ? Then the very beginning of that same time, communism revolted in Russia, and the kings, they all destroyed, killed. Communism prevailed, started all the Eastern Europe. हालेलुया, हम देखे हैं उस समय जो मार्क्सवादी जो चिंता है, जो थॉट है, उस जगह पर हर जगह, हालेलुया, रशिया का जो सोच था मार्क्सवादी का, वो हर जगह बंद हो गया। Karl Marx, Engels, Mao Zedong, a very spread of communism, especially some of the Eastern Europe, Middle Europe, even Asian countries. हालेलुया, उसी समय मार्क्सवादी की लेनिन हुआ। हालेलुया, उस तरीके का जो मार्क्सवादी जो चिंताओं को कड़ा करने वाला, क्योंकि जब इतनी बड़ा महामारी ये जो स्पेनिश फ्लूइड करके जब पैदा हुआ तो लोगों का बीच में मार्क्सवादी का मतलब ईश्वर नहीं है। हालेलुया, उस तरीके का चिंताओं को लोगों के अंदर डालकर मनुष्यों को, हालेलुया, गलत फहमी में डाल दिया। 25 lakhs people killed in Russia by Joseph Stalin, the great, autocratic man. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ പാസ്റ്ററെ. 25 ലക്ഷം ദൈവമക്കളെയാണ് ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ റഷ്യയിൽ കൊന്നൊടുക്കിയത്। हालेलुया, जो मार्क्सवादी का एक व्यक्ति था स्टालिन, जोसेफ स्टालिन, उन्होंने ये जो अपनी तत्व चिंता को प्रचार करने के लिए 25 लाख मिस्री लोगों को रशिया में उन्होंने खत्म कर दिया। വിയറ്റ്നാമില് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്। പിന്നെ എക്സാമ്പിൾ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ വീണ്ടും വരുന്നു। उससे बाद तुरंत दूसरी महायुद्ध आया। 8 കോടി മനുഷ്യര് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൽ മരിച്ചു। 8 करोड़ लोग हैं दूसरी महायुद्ध पे मर गए थे। 65 ലക്ഷം യഹൂദന്മാരെ ഗ്യാസ് ചാമ്പറിലിട്ട് കൊന്നു കളഞ്ഞു। ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല। 65 ലക്ഷം ജൂവിഷ് പീപ്പിളിനെ യഹൂദന്മാരെ हिलर गैस चैम्बर കൊന്നു। हालेलुया, जो गैस चैम्बर करके एक बहुत बड़ा, हालेलुया, ये खजना में एक घर के अंदर 25 लाख यहूदियों को हिटलर ने मार दिया गया। അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നടന്നു।
हालेलुया। हमको मालूम है इसी जैसा 19वीं शताब्दी में बहुत बड़ा दुर्घटना ये दुनिया के अंदर हुआ था। ദൈവത്തിന് അറിയാം ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കാൻ പോവാന്ന്. हमारे परमेश्वर जरूर जानते हैं ये सब बातें आगे होने जा रहा है। What God did, എന്താണ് ദൈവം ചെയ്തത്? उस समय परमेश्वर ने अपने साथ अपने लोगों के साथ अपने आप क्या किया? സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ നൂറ്റാണ്ട് 1901 തന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അസൂസ സ്ട്രീറ്റിൽ അയച്ച് പെന്തക്കോസ്റ്റൽ മൂവ്മെന്റ് ദൈവം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. आपको मालूम होना चाहिए असूसा स्ट्रीट करके जो शहर है वहां पवित्र 1901 में हालेलुया प्रभु ने पवित्र आत्मा को उधर कर पूरी देश के ओर बहुत बड़ा बेदारी को प्रभु ने ले आया. എന്തിനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ചത് ദൈവം? हालेलुया क्यों पवित्र आत्मा को प्रभु ने उस समय 1901 में भेजा? Because God knew these type of things are going to happen in the world. God's people should stand firm. They should get encouragement and strength. Therefore, God in advance pour out His Spirit upon us. परमेश्वर को मालूम था आगे दुनिया में मनुष्यों को पराक्रम के कारण इस तरीके के गंदे काम मेरी धरती पर दुनिया के बीच मेरी मनुष्यों के बीच में होने वाला है. इस समय मेरी लोग बहुत ज्यादा पीड़ा को सामना करना पड़ेगा. उनको सामना करने में हालेलुया हियाव देने के लिए हालेलुया उनको धीरज देने के लिए प्रभु ने पवित्र आत्मा 1901 में दुनिया के बीच में असूसा शहर में भेजकर पूरी देश में बहुत बड़ा बेदारी को लाया. लोग क्योंकि लोग उनकी सामना करना पड़े. അവിടെ അന്ന് 2009 അവിടെ പോയിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ആളാണ് പാസ്റ്റർ ജോർജ് എഫ് കുക്ക്, റോബർട്ട് എഫ് കുക്ക്. അദ്ദേഹമാണ് നിങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഈ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സഭ തുടങ്ങിയ വ്യക്തി. हालेलुया हम जो चर्च ऑफ गॉड इन इंडिया फुल गॉस्पेल इन इंडिया करके जो हालेलुया इसका स्थापन करने वाला हालेलुया जो कुक जो गोरे व्यक्ति है हालेलुया आपको मालूम है उस असूसा स्ट्रीट में उस असूसा शहर में जाकर प्रभु की पवित्र आत्मा उस बेदारी के बीच में जाकर पवित्र आत्मा को पाने के बाद भारत के ओर आया हुआ व्यक्ति है. ആമേൻ. അപ്പൊ കുക്ക് സാഹിബ് അവിടുന്ന് ദൈവശക്തി പ്രാപിച്ചിട്ടാണ് 1935 ഭാരതത്തിൽ വന്നതും നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ഈ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് പെന്തക്കോസ്റ്റൽ മൂവ്മെന്റ് അങ്ങനെയാ തുടങ്ങുന്നത്. हालेलुया उस जो रॉबर्ट कुक है वो असूसा शहर में जाकर पवित्र आत्मा का बेदारी के बीच में अपने आप को प्राप्त करने के बाद वहां से हालेलुया उसी शक्ति में भारत में आकर हालेलुया आज जो हम पेंटकोस्टल मूवमेंट जिसको कहता है पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा जो आराधना होता है उसी आराधना का शुरुआत किया. हालेलुया. आमीन. अपने हाथ उड़ाकर प्रभु को धन्यवाद करें. आप लोग बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है इस बातों को सुनकर. हालेलुया बिल्कुल आत्मा में होना चाहिए आपको. സെക്കൻഡ് കിങ്സ് 2 രാജാക്കന്മാരുടെ ബുക്ക് 6-ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ you know the story of Elisha and his servant. हालेलुया हम जानते हैं दूसरा राजा का किताब उसका 6 अध्याय जब पढ़ता है एलिशा और उनकी चेले के बारे में हालेलुया हम जानते हैं. Elisha's servant terrified by seeing the large of Aramic soldiers and forces. He was terrified. हालेलुया हम देखे हैं एलिशा का चेला अरामी सेनाओं को देखकर बहुत बड़ा डगमगाया और डरने लगा और घबराया गया. അരാമ്യ സൈന്യത്തിന്റെ ലക്ഷങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ പ്രവാചകന്റെ ശിഷ്യൻ പേടിച്ച് നിലവിളിച്ച് he's crying. हालेलुया ये एलिशा का चेला अरामी सेना अपनी छावनी की चारों ओर हालेलुया छावनी मारने के वजह से उन्होंने डरमाया और चिल्लाने लग गया. So suddenly this man, the prophet, was praying, Lord, open the eyes of my servant so that let him see the heavenly chariots and horses. हालेलुया तुरंत एलिशा ने बोला पिताजी इनकी ये जो चेला के आंखों के सामने स्वर्गीय हालेलुया रथों को स्वर्गीय सेनाओं को एक चिन्ह अभी प्रकट हो जाए इस मुश्किल परिस्थिति का सामना करने के लिए आप हमारी अगुवाई करता करके जानने पाए. आमीन.
Why this man prayed? Because he saw the same chariots and horses years back in his ministry when his master Elijah was taken into heaven. ഏലിയാവിനെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത് ഈ രഥങ്ങളാണ്, അഗ്നി അശ്വങ്ങളാണ്. അത് കണ്ട് ആ അനുഭവത്തിലാണ് പ്രവാചകൻ ജീവിക്കുന്നത്. That is his first hand experience. Therefore he is not fearing any natural horses or chariots. हालेलुया। कल परसों रात को भी हम सुने थे, हालेलुया, एलिशा का सेवकाई कहां से शुरू हुआ? अपनी आंखों के सामने एलिया को जब स्वर्ग की ओर उठाया गया, अग्नि रथों को, अग्नि घोड़ों को देखकर वहां से शक्ति पाकर उन्होंने अपनी सेवकाई को शुरू किया था। इसलिए उनको मालूम है, दुनिया की कोई भी शक्ति हो, दुनिया की कोई भी बात हो, अपनी जनों के विरुद्ध आ जाए, स्वर्गीय सेना हमेशा हमारी चारों ओर छावनी किया हुआ है, जो हमारे को बचाने के लिए। हालेलुया। എലീശ അവൻ മിനിസ്ട്രി തുടങ്ങുമ്പോൾ കണ്ടത് എന്താണ്? സ്വർഗത്തിന്റെ രഥങ്ങൾ, സ്വർഗത്തിന്റെ തീ തുടങ്ങിയിട്ട് now this man is become a little old. പക്ഷേ ഇന്നും ആ ദർശനം തന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. he is walking with the heavenly chariots, he is walking with the heavenly horses, therefore he is not fearing. But his servant, തന്റെ ദാസൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. हालेलुया। एलिशा का सेवकाई शुरू हुआ अपनी आंखों के द्वारा, हालेलुया, जो अपनी रथों को, अपनी घोड़ों को देखकर शुरुआत हुआ था। वो बुढ़ा हो गया, अपनी दर्शन उन्होंने कभी भूला नहीं। उनको मालूम है, मैं जहां से शुरू हुआ अंत तक वो मेरा साथ देगा, मैं वो मेरा पूरी सुरक्षा करेगा। लेकिन अपने चेलों को वो नहीं हुआ, इसलिए वहां वो डर गया। What kind of vision you are possessing? What kind of vision you ought to have? നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ദർശനമുള്ളത്? നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന്റെ തീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ? കൃപാവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് മിനിസ്ട്രിക്ക് ഇറങ്ങിയത്? Do you have this first hand perpetual eternal Holy Spirit experience in your life or in your ministry, in your family, in your children life? आज परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपसे पूछ रहा है, आपने क्या देखकर प्रभु के पीछे निकला है? हालेलुया। वो पवित्र आत्मा का शक्ति जो पवित्र, हालेलुया, प्रेरितों को अगुवाई किया हुआ अद्भुत कार्यों, हालेलुया, प्रभु की वरदानों, हालेलुया, जो आपके अंदर जो प्रभु ने दिया हुआ सामर्थ्य जो है, वो आपको कभी भी प्रभु की शक्ति से, प्रभु की विश्वास से कभी पीछे हटने नहीं देगा। आमीन। ദൈവം വിടിവിക്കുമെന്നും സഹായിക്കുമെന്നും ആ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ആ കാൽവറി ദർശനം, അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കറേജ് ആവുകയില്ല. हालेलुया। अगर कालवरी का दर्शन अगर हमारे जीवन में अगर रखा है तो, पाया है तो, उस पे अगर हम चल रहा है तो दुनिया की छोटी छोटी बातें हमारे सामने आ जाए, हम डगमगाएंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। When you come to New Testament, the Gospel of Luke, രണ്ടാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ Gabriel came into the house of Mary. Mary was a small young girl. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, you have granted the grace of God. ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നിനക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. Because of that grace, you are going to be a pregnant woman. You are going to, you're getting into pregnancy. നിനക്ക് കൃപ ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകും. That means हम लूका रचित समाचार 2 अध्याय मरियम के बारे में, यीशु मसीह के जन्म के बारे में अच्छे से बताए। प्रभु की आप स्वर्गदूत आकर मरियम स्त्री से, कुंवारी से बता रहे, परमेश्वर की अनुग्रह तुम पर प्रकट हुआ, इसलिए तुम परमेश्वर की पुत्र को अपनी कोख में जन्म देगी। See, something happened in the past. ദൈവത്തിന്റെ കൃപ മേരിക്ക് ലഭിച്ചു, അത് കൊടുത്തു, മേരിക്ക് ലഭിച്ചുവെങ്കിലും മേരിക്ക് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് കൃപ കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. हम जानना जरूरी है, मरियम को जब स्वर्गदूत जब प्रकट हुआ तब अकेला नहीं उनको अनुग्रह हुआ, क्योंकि स्वर्ग में मरियम के ऊपर अनुग्रह है कर मरियम लड़की उसके लिए अलग है कर स्वर्ग जानता है। तब स्वर्गदूत को भेजा, जाओ उसको बोलो तुम्हारी ऊपर अनुग्रह है, इसलिए परमेश्वर की आत्मा तो हालेलुया द्वारा तुम गर्भवती होगी। ദൈവം നിങ്ങളിൽ പലർക്കും
ചില കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൃപ തന്നിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് യു റെക്കഗ്നൈസ്, you diagnose, you recognize the grace of God in you. നിങ്ങളിലുള്ള കൃപയെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. Don't sit idly. നിങ്ങൾക്കൊരു കൃപയുണ്ട്, ദൈവം തന്ന കൃപയാണ്. God has poured out that grace upon your life. കൃപാവരങ്ങൾ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളത് ഒളിച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല, മറച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല. आज रात को मुझे सुनने वाला हर एक व्यक्तियों को मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं, आप आज प्रभु की वचन सुनने के पीछे के कारण आपकी ये धरती पर जन्मने से पहले प्रभु ने आपको चुना हुआ है, प्रभु की अनुग्रह आप पर दिया हुआ है। आगे दिनों में इस काल के लिए प्रभु की महिमा करे, प्रभु की राज्य का हालेलुया कार्यों को आप हाथ बढ़ाए। इसलिए कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की बहुत बड़ा अनुग्रह आज सुनने वाला एक एक लोगों के ऊपर है, इसलिए आप डरो मत, हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो। നിങ്ങളുടെ കൃപയെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക. Paul says to Timothy, should not neglect the grace of God in you, fall into fame. The grace of God, നിന്നിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവകൃപയെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ വിചാരിക്കാതെ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹത്തിനു വേണ്ടി അതിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ഉപയോഗിക്കുക. आपके ऊपर परमेश्वर का जो अनुग्रह डाला हुआ है, हालेलुया। आप सोच रहा है प्रभु का दास आया, मुझ पर वचन बोला, मैंने सुन लिया, मेरे बच्चे को चंगाई मिल गया, मेरे को वो मिल गया, इसलिए मैं आया। नहीं 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 नहीं, ये आपका गलत फहमी है। वो एक बिचवाई है, हालेलुया। आपको चंगाई या आपको कोई चीज का बिचवाई के द्वारा आप आया है इधर, लेकिन युग से पहले प्रभु ने आपको चुना हुआ है, प्रभु ने आपको अलग किया हुआ है। वो जो वरदान को आप उसको हालेलुया आलसी के द्वारा हालेलुया महसूस ना करें। प्रभु जी, मैं आपकी राज्य के लिए बुलाया वो व्यक्ति है, मुझे आपकी महिमा के लिए काबिल बनाए करके अपने आप को रोज प्रभु के सामने समर्पण कीजिए। പുതിയ നിയമത്തിൽ 27 കൃപാവരമുണ്ട്. രോഗശാന്തി, ഭൂതശാന്തി, അത്ഭുതങ്ങൾ, അടയാളങ്ങൾ, പ്രവചനങ്ങൾ, മിഷൻ വർക്ക്. See, all this grace imparted in your life, but you don't know whether you are possessed by God's grace. नया नियम में 27 तरीके का वरदानों को मेंशन किया हुआ है, लेकिन हम लोग कभी जानते नहीं है उसमें से कौन सी वरदान है जो मेरे अंदर है करके। इसलिए हालेलुया आपको जो अंदर से जो हालेलुया प्रभु प्रेरणा देता है वही कार्य करो, वो प्रभु की वरदान है। Tonight, when you get time, please read 1 Corinthians 12 whole chapter, 1 Corinthians 14 whole chapter, Ephesians 4 whole chapter, Galatians 5 whole chapter, Romans 12 whole chapter. These 5 chapters talking fundamentally about the gifts of the Holy Spirit. हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र वचन गलातियों का किताब है, हालेलुया, और एफेसियों का किताब और रोमियों का किताब और कोरिन्थियों को 12 और 14 अध्याय, हर जगह अलग अलग तरीके का वरदानों के बारे में अच्छे से प्रभु हालेलुया मेंशन किया हुआ है। आप बिल्कुल ध्यान से उसको पढ़िए और आप उसमें से दिखाई देगा आपके अंदर प्रभु ने इस काल के लिए कौन सी वरदान दिया है, कौन सी अनुग्रह दिया है प्रभु की महिमा करने के लिए। Think about Mary. She's a very young woman, just got to maturity. She doesn't know. വലിയ അത്ഭുതം തനിക്ക് നടന്നു എന്ന് മെറി അതിനെപ്പറ്റി അവയറല്ല. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രോബ്ലം. ആ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ചില കുട്ടികള്, യങ്സ്റ്റേഴ്സ്, യങ് പാസ്റ്റേഴ്സ്, ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ്, നിങ്ങളിലുള്ള വലിയ ദൈവകൃപയെ പറ്റി നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല. യു ആർ നോട്ട് സെർച്ചിങ്, യു ആർ നോട്ട് ഫൈൻഡിങ്, യു ആർ നോട്ട് നോയിങ് the grace of God, the amount of the grace of God which is in you. हालेलुया। आप जानना जरूरी है, मरियम जो लड़की को कभी नहीं मालूम था कि मेरे अंदर ये वरदान है, परमेश्वर की कृपा है, हालेलुया। उनका जो संतानों को धरती पर जन्म देने के लिए प्रभु ने मुझे चुना हुआ है, युग से पहले प्रभु ने मुझे देखा हुआ करके मरियम को कभी नहीं मालूम था। आज मुझे सुनने वालों बच्चों को मैं कहना चाहता हूं, स्त्री लोगों को मैं कहना चाहता हूं, प्रभु ने आपको प्रभु की सेवकाई के लिए, प्रभु की महिमा के लिए अलग अलग तरीके का
वरदानों, अलग अलग तरीके का हालेलुया प्रभु की अनुग्रह, प्रभु की हालेलुया आशीषें भरा हुआ है, क्योंकि आप आगे जाकर प्रभु के लिए इस्तेमाल हो जाए। ദൈവപുത്രൻ എന്നിൽ ജനിക്കുന്നു, ദൈവം അതിനുവേണ്ടി എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഐ ആം ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വുമൺ എവർ ദ വേൾഡ് ഹാസ് സീൻ. ആ ഒരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നില്ല. हालेलुया। हम लोग कभी भी ये नहीं सोचते परमेश्वर ने मुझे चुना हुआ है प्रभु की सबसे बड़ा सेवकाई के लिए, प्रभु ने मुझे देखा हुआ है। हम लोग सोचते खाया पिया, मेरे को चंगाई मिल गया, मेरे को थोड़ा धन दौलत मिल गया, मैं कोने में सो जाऊं। नो 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 नो, एक भी विश्वासी को प्रभु ने उस तरीके से नहीं चुना गया। हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, आज जो जन्म होते हैं प्रभु की वजन के द्वारा, जो चंगाई प्राप्त करते हैं, जो यीशु मसीह को इस युग में जो जानते हैं, हर एक व्यक्तियों को परमेश्वर अलग अलग तरीके से हालेलुया प्रभु के लिए इस्तेमाल के लिए बनाया हुआ है। आप पक्का जानना, आलसी ना रहे। Find out ദൈവത്തിന്റെ, you find out the anointing and ability in your life with prayer, with fasting. Then exercise that gifts. You must know who am I am different. ഞാൻ വ്യത്യസ്തയാണ്, ഞാൻ വ്യത്യസ്തനാണ് എന്നുള്ള ആ ഡിഫറൻസ്. The future is bright. You must understand I am different. ഞാൻ വ്യത്യസ്തനാണ്. അത് പറയുവാൻ വേണ്ടി ദൈവദാസന്മാർ പ്രസംഗിക്കുന്നു, ദൂതുകൾ കേൾക്കുന്നു, ആലോചന കേൾക്കുന്നു. സൂമിൽ എന്തിനാ ഗബ്രിയേൽ making it aware that who you are. स्तोत्र हालेलुया। आज आपको हालेलुया प्रभु की वरदान, प्रभु की अनुग्रह आपके ऊपर क्या है करके आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। और वो कैसे जानकारी मिलेगा? उपवास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन ध्यान के द्वारा आपके अंदर प्रभु प्रेरणा देगा किस बात के लिए बुलाया हुआ है। इसलिए प्रभु का दास लोग जब आपके सामने वचन जब बांधते हैं, आपके अंदर हालेलुया वो प्रेरणा होना चाहिए। सही में इस बात के लिए मैंने प्रभु ने मुझे निकाला हुआ। इसलिए कुंवारी मरियम को पास आकर गब्रिएल दूत ने बोला, इस काम के लिए तेरे को अलग किया हुआ है, तू उसके लिए अलग है। इसी जैसा हर एक व्यक्तियों को प्रभु अलग अलग किया हुआ है। ये जानकारी पक्का रखिए। നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ വലിയ പാൻഡമിക് ലോകം മുഴുവൻ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ നശിച്ചു, ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ്, എവരിത്തിങ് തീർന്നു, അത് ശരിയായ ചിന്താഗതിയും പഠിപ്പിരുമല്ല. हालेलुया। ये जो बहुत बड़ा महामारी जब दुनिया में जब आए तो हर एक लोगों ने ये प्रचार करना शुरू कर दिया, ये दुनिया की अंत है, यीशु मसीह आने वाला है, वो है, ये है। लोगों को मनोबलों को खत्म कर दिया और लोगों को एक छोटे मनों के अंदर कर दिया। अभी कलीसिया बंद हो गया, वो बंद हो गया, लोगों को हालेलुया धीरज को कम कर दिया। ये जो पढ़ाई बिल्कुल सही नहीं है। ബൈബിൾ സേസ് പരീക്ഷയോടുകൂടെ if there is a exam, there is a promotion. പരീക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ട്. അതാണ് ഇതിന്റെ പദ്ധതി. हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र वचन आप ध्यान से पढ़ेगा तो हर एक बाप के सामने जब परीक्षा हुआ, उसके आगे एक बहुत बड़ा उन्नति भी हुआ है। यह जरूर आप जानिए। हालेलुया। Ultimately God's purpose is what? John 3:16. God so loved the world and gave his only begotten son, whosoever believeth in him should not perish. ആ വാക്യം മറക്കരുത്. should not perish. നശിച്ചു പോകാതിരിപ്പാൻ. അപ്പൊ നശിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. God doesn't want his creation to destroy. ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് താല്പര്യമില്ല. താല്പര്യമില്ലാത്തത് മകനെ വിട്ടത്, സുവിശേഷം വിട്ടത്, അഭിഷേകം വിട്ടത് എല്ലാം നശിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. സ്തോത്രം. हालेलुया। हम भजन संगीता 2 पे हम देख सकता है, हालेलुया, तुम मार्ग ही में नाश न हो, इसलिए क्षण भर हालेलुया पुत्र को चुमो, ऐसा न हो कि उनकी क्रोध करे। प्रभु कभी भी नहीं चाहते हैं नाश हो, नष्ट हो। प्रभु चाहते हैं सब लोग आगे बढ़े, सब लोग आगे जाए। प्रभु की जन है सब लोग, प्रभु सभी को बचाना चाहता है। ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. हम एक और उदाहरण बताकर मैं प्रार्थना करना चाहता हूं.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആദ്യം നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് യോബിന്റെ ജീവിതം. हालेलुया। बाइबल की कहानी में, बातों में सबसे शुरुआत का बात है अय्यूब का बात। You know what happened in the life of Job? You see, he is completely, some extent, destroyed physically. His people, children died, daughters died, sons died. Every wealth has been taken. Even his wife said, "You go and blaspheme God and go and die." See his situation. हालेलुया। हम जानते हैं अय्यूब के बारे में। अय्यूब बहुत धनदा दौलत वाला था, बहुत बड़े अच्छे व्यक्ति था, लेकिन हर एक चीज एक एक कर खत्म हो गया, बिल्कुल नाश हो गया। और प्रभु से हालेलुया विश्वास में बने रहने का कोई भी कारण उसके अंदर नहीं था। God is asking Satan, "Have you fixed your eyes upon my servant Job?" हालेलुया। हम देख सकता है शैतान से परमेश्वर खुद पूछता है, तूने मेरी बेटा अय्यूब के ऊपर नजर तो नहीं लगाया? प्रभु पूछ रहे, मेरे दास के ऊपर तू अपने दृष्टि को रखा है क्या? What is the reply from Satan? What Satan is saying? क्या उधर शैतान क्या उत्तर प्रभु को देता है? Satan is saying, you protected everything, and without your permission I cannot enter into his life. प्रभु को शैतान बोलता है, तू अय्यूब को चारों ओर से घेरा हुआ है, चावनी लगाया हुआ है, इसलिए मैं उस पर हालेलुया अटैक नहीं कर सकता। ദൈവത്തിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് കവറിങ്, പ്രസൻസ്, പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്കുണ്ട്. എന്നാൽ സാത്താന് ദൈവം പെർമിഷൻ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാത്താന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. परमेश्वर का बहुत बड़ा चावनी, बहुत बड़ा हालेलुया हमारे चारों ओर हमेशा है, ये आप विश्वास कीजिए। जब तक परमेश्वर उनको इजाजत नहीं देता, शैतान हमको छू नहीं सकता। ബൈബിൾ പറയുന്നു, നിന്റെ തലയിലെ ഒരു മുടി, ഒരു സിംഗിൾ പീസ് ടു ഫെൽ ഡൗൺ, അത് താഴെ വീഴാവുന്നത് ദൈവം അറിയുന്നു എന്ന വേദപുസ്തകം പറയുന്നത്. परमेश्वर की पवित्र वचन यीशु मसीह मुंह से खुद कहता है, तुम्हारी सिर का एक एक बाल मैंने गिना हुआ है, अगर उसमें से एक अगर गिरना है तो मेरे बिना इजाजत से नहीं गिरेगा। इतनी अच्छे सुरक्षित प्रभु हमको रखा हुआ है। हालेलुया। വേലി കെട്ടി നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു. इतने अच्छी तरीके से प्रभु की हालेलुया सुरक्षित जगह में है हम। ആ വേലി ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദൈവം സദാകാലം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അതിനെ തന്നിരിക്കുന്നത്. इसलिए हमेशा हमारे साथ रहने वाला पवित्र आत्मा को प्रभु ने हमको दिया है। See, don't fear coronavirus, because coronavirus cannot remove the presence of the Holy Spirit. हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र आत्मा का हालेलुया इच्छा के बिना कोरोना वायरस नहीं भेज सकता। Hallelujah. അതൊന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. You all heard about Martin Luther. Martin Luther, the founder of Protestant movement. हम मार्टिन लूथर के बारे में जो हालेलुया शुरुआती हालेलुया जो बेदारी के शुरुआत किया वो व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं। He lived during the 15th century. 1500 അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നു. 1500 साल में वो जीवित रहा। He opposed all the wrong teachings of Roman Catholic theology. हालेलुया। रोमन कैथोलिक लोगों ने जो शिक्षा दिया उसका विरुद्ध उन्होंने बोलने शुरू कर दिया। He came out from RC. उन्होंने भी रोमन कैथोलिक जो विश्वास है उससे वो बढ़ते आए थे। He got married another sister. उन्होंने एक बहन से शादी किया। അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് അന്ന് ഇതുപോലെ പെൻഡമിക് ജർമ്മനിയിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ടായി. हालेलुया। आजकल की धरा एक बहुत बड़ा महामारी, वो जो उनकी पत्नी जब गर्भवती थे तब हुआ। He was living in the city called Wittenberg in Germany. विट्टेनबर्ग करके जो जर्मनी में जो शहर है वहीं थे वो।
All the people said that people are dying, especially his wife is pregnant. Run away from this place, otherwise you will die. Everybody threatened him. हालेलुया। बहुत सारे लोग उनको डरा दिया, दुनिया भर में लोग मर रहा है, तुम्हारी पत्नी भी प्रेग्नेंट है, वो मर जाएंगे बोला। He never left, he stayed there. हालेलुया। उस जगह को हालेलुया मार्टिन लूथर ने छोड़ा नहीं, उनके पत्नी के साथ वहीं रहा। Then he developed a Protestant movement. हालेलुया। उन्होंने बेदारी की जो हालेलुया कार्यों को उन्होंने वहां शुरुआत किया। ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, this situation, the lack of money, lack of health, virus problem, these should not shut your life, shut your ministry, shut your family, but more than that, God can, God will deliver me. Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, Jehovah Sikkinu, Jehovah Nisi, എന്നെ സഹായിക്കുക. Strong हालेलुया। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इतनी बड़ी महामारी के बीच में हालेलुया विश्वास में कमजोर ना हो। हालेलुया। आपको आर्थिक अवस्था से थोड़ा कमजोर है, दुनिया की लोगों का तरीके से जो हालेलुया हिम्मत आपको थोड़ा कम मिल रहा है, इससे आप डरो मत। हालेलुया। इसके ऊपर प्रभु की अभिषेक के द्वारा प्रभु आपको इसको सामना करने का हियाव कर रहा है, धीरज दे रहा है, सामर्थ्य दे रहा है। आमीन। I can do all things in all situation. I can do എനിക്ക് സകലവും സാധിക്കും. I can do all things in all situation through Jesus Christ who strengtheneth me. हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन करता, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ मुझे हो जाएगा। ये चाहे कोई भी काल हो, या कोरोना काल हो, या कोई महामारी की काल हो, यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ मैं कर सकता है। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। I would like to offer a small prayer for you. मैं आपके लिए एक छोटे से प्रार्थना करना चाहता हूं। I know you may have all these difficulties in your life, financial problem, physical problem, otherwise somebody may be in the hospital, serious situation, whatever may be. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ put your hand upon your chest, അല്ലെ രോഗമുള്ളടുത്ത് കൈവെക്ക്, പ്രയാസമുള്ളടുത്ത് കൈവെക്ക്. You put your own hand. We are going to pray for the intervention of the Holy Spirit, strengthening it, encouraging it, removing every obstacles, God's bless the power of the Holy Spirit rest be upon every brother, every sister, every young man, young woman, child, irrespective of your situation. हालेलुया। हम जानते हैं आपके मित्र लोग, आपके लोग, कोई बीमार, कोई परेशान इस तरीके के अस्पताल में कहीं ना कहीं होगा, लेकिन मैं आपके लिए एक प्रार्थना करता हूं। आप अपनी हाथ अपने सीने में लगाइए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आपकी जीवन की परिस्थिति कुछ भी हो, उस परिस्थिति से प्रभु आपको बचाने के लिए आज रात को प्रभु काफी है। प्रभु की दया, प्रभु की करुणा, प्रभु की चाहत आपके ऊपर होगा। Father, in the name of Jesus, though we are from different places, like people are in UP, I am in Bangalore, maybe in the village or city. You are the God of the villages and cities and districts and states. You are the universal God, omnipotent, omniscient, omnipresent. പരിമിതി ഇല്ല, സ്ഥലകാല വ്യത്യാസമില്ല. You are not the God of only night or day. നീ സർവ്വശക്തന്റെ യെസ് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. financial struggle, yes, let the pouring, encouraging, hallelujah. ചില അഭിഷേക ശുശ്രൂഷകള് നിന്റെ മക്കളിൽ പുറപ്പെടട്ടെ കർത്താവേ. അശ്വങ്ങളെ കാണുവാൻ, അഗ്നിരഥങ്ങളെ കാണുവാന്, ഇതുവരെ കാണാത്തത് കാണുവാന്, to see new things, let them see all the things, all the story, all the serial, new things, new vision, and the heaven open for them, and ministry, and Hebrew pastor and his family, children, associated pastors, everyone, every believer, everyone. God, thank you.
Amen. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So thank you. God bless you. I'll be praying for you. Please pray for us also. थैंक यू सर, थैंक यू हमारे बीच में आकर इतना श्रेष्ठ वचनों को हमको हिम्मत दिया, धीरज दिया, हालेलुया, प्रभु की आत्मा का सामर्थ्य दिया, उसके लिए धन्यवाद. ഞങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ ദാസന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം അത്ഭുതകരമായി വീണ്ടും അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷയിൽ മുന്നേറുവാനിടയാക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗിൽ വരണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സാർ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ. जय जयकार, जय जयकार करे. ओ जय जयकार, जय जयकार करे. उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा. उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा. चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हाहाकार, सब संकट से सब कष्टों से ले जाएगा पार. ओ जय जयकार, जय जयकार करे. ओ जय जयकार, जय जयकार करे. सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का दास के लिए. पिताजी साइमन पास्टर जी के लिए विनती करते, दासी के लिए, बेटी परिवार के लिए विनती करते. पिताजी आपका दास को हमारे बीच में आज इस्तेमाल किया. पिताजी जो कुछ भी हमारे सिर का बाल तक गिना हुआ, पिता आप हमारे जीवन की हर एक बातों को जानने वाला है. पिताजी इतनी बड़ा महामारी के समय पर पिताजी भारत में हालेलुया लोगों को हालेलुया लोगों भारत में लोगों को मन को न क्षीणित हो पिताजी, ना हालेलुया न छोड़ने पाए. जो बेदारी जो आपने शुरुआत किया पिताजी, इसका पूर्ण रूप में होने के लिए हम हमसे विनती करते हैं पिताजी. दया करना पिताजी, करुणा दिखाना पिताजी, अद्भुत कार्य करना पिताजी. स्वर्गीय आशीष, स्वर्गीय बरकत, स्वर्गीय करुणा, अपरंपार का शक्ति पिताजी इस दिनों में आपकी करुणा उस देश में होने के लिए विनती करते. आपके दास और परिवार को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आशीष देते, उसका सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते. महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के पवित्र नाम मांगते हैं. आमीन, आमीन, आमीन. प्रभु का दास, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.